आज हम करते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 3E and this exercise is based on the multiplication of a number with any given rational number. So if we have to multiply any number with the given rational number, then the number may be positive number may be negative number may be zero. So whenever we say if we have to multiply any number with the given rational number, then number may be any integer. So simply how we will multiply a given integer with the given rational number. So let us see the question number first. Multiply. Question number first, part 1. Multiply the number 6 with the given rational number 2 by 3. So the given number is 6 and the given rational number is 2 by 3. When we have to multiply that, first of all, this number will be written as a fraction. Here numerator is 6 and denominator is 1. In the second rational number, numerator is 2 and denominator is 3. So when two numbers are in multiplication form, then first of all see in numerator and denominator some numbers are the factors of each other or they lies in the table of same number. For example, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6. Now in denominator both the number are 1 1 and in numerator 2 2. So we will multiply this 2 with 2. So 2 into 2 upon 1 into 1. It will be equals to 4 upon 1, that is 4. So this is your answer. Then second question, second part, that is part B. Multiply 37 upon minus 10 with the number 5. See, the number is here 5 and the given rational number is 37 upon 10. So this number can be written as 5 upon 1. Now see, this number and this number are the in same table. So 5 1s are 5, 5 2s are 10. Now 37 is prime number. So 37 will be multiplied by 1. So 37 into 1 whole upon minus 2 into 1. It will be equals to 37 upon 2 minus. Now this is the rational number. Now this number can be expressed as the mixed fraction. Kaise? 18 2 ja 36. So it will be equals to minus 18, right? 1 upon 2. And that's your answer. Then part C. Find the multiplication of 3 right 1 upon 21 into minus of 7. Okay. First what we will do? We will convert this mixed fraction into fraction. So 21 3 ja 63. 63 plus 1 64. 64 upon 21 into minus 7 upon 1. Now see, this 7 and 21 are in the same table. So 7 1 ja 7 and 7 3 ja 21. Now this 63 cannot be divided by 3. So 61 into minus 1, that is minus of 64 upon 3. This is the answer. Now we can divide this 64 by 3. So it will be equals to, किसके इक्वल होगा ये? देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. So 21 3 ja 63. Remainder will be 1. So minus 21 right 1 upon 3 will be your answer. So these three questions are clear. So pause the video note down. Now question number D part.
minus 6 write 1 upon 9 multiplied with minus of 18. See, both the number are negative. This minus and this minus if multiply this minus, then it will be positive. Now 9 6 54 plus 1. So it will be equals to 55 upon 9 into 18. This 18 can be written as 18 upon 1. Now 9 1 ja 9, 9 2 ja 18. Now it will be, now we will multiply 55 into 2, that is 110 upon 1. So 110 is your answer. Then second E part, 3 write 18 upon minus 15 into 30. How we will multiply? First this fraction will be converted into mixed fraction into fraction. So 15 into 3, 45 and 45 8, 53. So minus 53 upon 15 into 30 upon 1. Now this 15 1 ja 1, 15 2 ja 30. So final answer will be minus 53 into of 2, that is minus 106. That's your answer. Then F part, F is 1 write 7 upon 39 multiplied with minus of 91. See, 39 will be multiplied with this, 39 will be multiplied with 1, so 39 and plus 7, that is 46 upon 39 into minus of 91 upon 1. Now see, these two numbers are the multiple of 13. 13 3 ja 39 and 13 7 ja 91. 13 7 ja 91. Now again this 46 will be multiplied with minus 7 divided by 13. Okay, this is the 13. Now this 7 6 ja 42, 42 का 2 carry 4, 7 4 ja 28 plus 4, 32. So minus 322 upon 13. This is your answer. Pause the video, note down. Next question, Z part, minus 6 write 9 upon 50 into minus of 10. So this minus and this is also minus, so minus minus will be plus. Now 56 the 309 divided by 50 into 10. This 0 se 0 cancel. Now remaining is 309 upon 5. Now simply you can divide this 309 by 5. So 5 6 30, 0 remainder 9. So यहाँ से अपन 5 1 5, remaining will be 4. So 61 right, 4 upon 5 will be your answer. Then H will be minus 8 right 11 upon 95 into 38. Okay, so this 95 will be multiplied with first 8. So 8 into 95 plus 11 upon 95 minus into 38 upon 1. Now multiply 8 5 the 40, 0 carry 4, 9 8 the
72 and 4. 72 and 4, 76 plus of 11 upon 95 into 38. So this will be 771 upon 95 into 38. So this 38, 19 2 ja 38, 19 5 ja 95. Now this 2 will be multiplied with numerator. So 2 1 ja 2, 7 2 ja 14 ka 4, carry 1, 1542 upon 5. Okay. Now this 1542 will be divided by 5. So here we can divide. Simply 1542 किससे डिवाइड करना है 5 से. देखो 5 3 are 15, 4. Now here we can put 0. You can take carry as 2. So 5 8 are 40. Remainder is 2. So answer will be 308. Write 2 upon 5 in mixed fraction. Okay. So pause the video, note down. Next, second question. Now, so in first question we discuss that how we will multiply a given number with the given rational number, and in second question two rational numbers are given and we have to multiply the rational number. So question number second, part A. Question is -5 upon 4 into 4 upon 9. Simple. This 4 1 ja 4, this 4 1 ja 4. So what is remaining? Remaining is your -5 upon 9 is your answer. B part. B is -2 upon 3 into -7 upon 11. This minus will be plus, and this plus is multiply minus, then overall will be minus. So 2 upon 3 into 7 upon 11. See, there is no common factor. So numerator 2 into 7, that is 14, and 3 into 11, that is 33. So minus 14 upon 33 is your right answer. Then B part. Sorry, C part is your -63 upon minus of 16 into minus of 16 upon 9. See, देखिए 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 16 1 जा 16. ठीक है, this minus plus. Now only one minus is remaining, so answer will be negative. Now 7 into 1, 7 into 1 7, denominator 1, so answer is your -7. Then D part. D is your -48, minus of 48 divided by 5 into. Second is -20 upon 9. See, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. कितने बार कट रहा है? 4 बार. देखिए ये कितने से कट जाएगा? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18. Okay, now this minus and minus will be plus, so answer will be positive. Now 16 into 4, 64 upon 3. अब 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 21 राइट, 1 upon 3 will be your answer. Okay, pause the video, note down. Now question number 3. Question number 3, part question number 3, part A. Multiply 13 upon 15
into minus 16 upon 19 into 19 upon 13. More than two rational numbers are there and we have to multiply. तो सबसे पहले क्या देखेंगे? This 13 will be cancelled by this 13. Then this 19 will be cancelled by this 19. Now remaining क्या है? Minus 16 upon 15 and these are not in same table. So answer will be minus 16 upon 15. अब देखो आंसर आएगा नेगेटिव. सो 16 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो 1 टाइम डिवाइड होगा. तो minus 1 राइट 1 upon 15 will be your answer. Okay. Now B part. B is your multiply minus 21 upon 80 into 16 upon minus 63 into minus 15 upon 70. C. ओके. क्या करना बेटे? अपने को मल्टीप्लाई करना. पहली फ्रैक्शन है minus 21 upon 80, सेकंड 16 upon minus 63, then minus 15 upon 7. So first of all देखिए this minus will be, this minus से कैंसिल आउट हो जाएगा. 21 1 जा 21, 21 3 जा 63. इस 3 से ये 15 कितने बार कट जाएगा? 5 टाइम्स. ओके. और इस 16 से ये 80 कितने बार कट जाएगा? 5 टाइम्स. और इस 5 से आपका ये 5 कट गया. तो न्यूमरेटर में तो ओनली -1 बचा और डिनोमिनेटर में बचा 17. तो आंसर इज योर -1 अपॉन 17. क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटे? मल्टीप्लाई टू मिक्स फ्रैक्शन. 2 राइट 1 अपॉन 9 into minus 2 राइट 1 अपॉन 4. देखिए कितना इजी क्वेश्चन. पहले क्या करेंगे? दोनों मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में. तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे. 9 2 जा 18 and 1 19 अपॉन 9 into 4 2 जा 8 and 1 9. तो minus 9 अपॉन 4. अब देखिए दिस 9 से ये 9 कट गया. क्या बचा? ये प्लस वाला फ्रैक्शन, ये माइनस. तो माइनस एंड प्लस, व्हेन प्लस इज मल्टीप्लाइड विद माइनस इज इक्वल्स टू माइनस. सो माइनस ऑफ 19 अपॉन 4. अब देखो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3. तो 4 राइट 3 अपॉन 4 विद नेगेटिव साइन. दिस इज योर आंसर. सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज क्लियर. Pause the video, note down. Next question, question number 5. Sorry, 4 का B part. Question number 4 B part. B में पहला क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट क्या है? -3 राइट 5 अपॉन 6 into 7 अपॉन -9. देखिए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 से 6 3 जा 18 and 5 minus of 23 upon 6 into 7 upon this -9. This minus will be plus. आप देखिए ये क्या होगा बेटे? क्योंकि 23 is also prime number, 7 is also prime number. So they will have only common factor 1. So यहाँ क्या करेंगे? 7 को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 से 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 2 जा 14 and 2 16 upon 9 3 जा 63. So this is your answer. Okay. Then C part is -11 right 1 upon 5 into -1 right 1 upon 8. देखो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से. 11 5 जा 55 plus 1. So -56 upon 5 into 8 1 जा 8, 8 and 1 -9 upon 8. अब देखो ये 8 की टेबल से 8 7 जा 56. ठीक है. अब देखो this minus and minus will be plus. तो plus of 7 into 9 and denominator में हो जाएगा 5 into 1. ओके. तो ऊपर आ जाएगा आपका 63 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका
5 तो 63/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना तो 63 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से। तो देखो ओरल डिवाइड कर सकते हैं 6 में 5 का डिवीजन 1 टाइम 5 1 जा 5 1 रिमाइंडर बचेगा 3 5 2 जा 10 12 राइट 3/5 दिस इज योर आंसर। देखो वापस मल्टीप्लाई करो 5 12 जा 60 एंड 363/5 देन डी। देखिए डी क्या है बेटे डी में अपने को मल्टीप्लाई करना -11 राइट 1/4 -11 राइट 1/4 इनटू 1 राइट 1/7। देखो दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है 4 को मल्टीप्लाई करो 11 से 44 + 1 तो -45/4 इनटू ये क्या है 1 राइट 1/7 7 इनटू 1 7 + 8 तो ये हो गया 8/7। अब देखिए डिनोमिनेटर में ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब 45 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं तो अपन क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो -90 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या करेंगे 90 को सिंपल डिवाइड करो 7 से तो देखो कितना होगा 7 1 जा 7 रिमाइंडर बचेगा 2 और 0 7 2 जा 14 एंड रिमाइंडर बचेगा 6 तो -12 राइट 6/7 will be your answer of the thing are clear। चलिए all the video note down। then question number E part fourth का question number 4 E part E में क्या दे रखा बेटे 3 राइट 1/5 multiplied with -1 राइट 7/8। देखो क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 5 3 जा 15 + 1 16/5 इनटू 8 1 जा 8 8 and 7 15 तो -15/8। अब देखो ये इन दोनों में देखिए दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है दिस 16 एंड दिस 8 आर द फैक्टर तो 8 1 जा 8 8 2 जा 16 ये 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 2 3 जा 6 साइन है माइनस डिनोमिनेटर में 1 सो आंसर इज योर -6। कितना सिंपल क्वेश्चन। देन पार्ट F क्या है F इज योर -6 राइट 9/11 इनटू -1 राइट 7/15। अब देखिए ये क्या है बेटे ये 11 है क्या है 11 तो अपन 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 11 6 जा 66 66 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -75/11 इनटू -15 1 जा 15 एंड 15 एंड 7 कितना होगा 22 तो -22/15। नाउ सी 11 1 जा 11 11 2 जा 22 15 1 जा 15 एंड 15 5 जा 75। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस एंड 5 2 जा 10 डिनोमिनेटर में 1 तो आंसर इज योर 10। क्लियर। नाउ Z part is very simple। G में क्या दे रखा -7 राइट 2/19 -7 राइट 2/19 इनटू क्या दे रखा है 5 राइट 1/15। अब देखो 19 की टेबल 7 बार बोलना तो 19 की टेबल देखो 7 9 जा 63 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो 7 9 जा 63 कैरी कितना बचेगा 6 एंड देन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 7 + 6 कितना होगा 7 + 6 13 तो 13 का मतलब क्या 133 और 133 में कितना ऐड कर देंगे अपन 133 + 2 -/19 इनटू 15 5 जा 15 5 से कितना होता है 75 और 176/15। अब देखो 133 इनटू 135/19 इनटू 76/15। देखो 19 4 जा 76 एंड 15 9 जा 15 9 जा कितना होगा
अरे 15 9 जा 135, ठीक है। आप देखो यहां से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में तो कट गया, 9 4 जा 36 विल बी योर आंसर। ओके, सो ऑल द वीडियो नोट डाउन। Then last question, fifth का question number fifth, two part is there. Fifth का part A क्या दे रखा, -15, बहुत ध्यान से देखिए, into -1 right 1 upon 2 into 1 right 7 upon 20। देखिए क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे -15 upon 1 into ये एक्सप्रेशन 2 बन जाए 2 + 1 -3 upon 2 into 27 upon 20। ओके, अब देखो ये कितने बार कटेगा, देखिए ये 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। ओके, आप किससे कट रहा है, किसी से भी नहीं कट रहा, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 into 27 upon 8। देखो 2 and 4 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 8 बार। देखिए अब 9 को मल्टीप्लाई करो 27 से, तो ये क्या आएगा, 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 2 जा 18 और 6, 18 और 6 कितना होगा 24, 243 upon 8। ओके, नाउ बी पार्ट, बी को कैसे सॉल्व करेंगे, बी इज आल्सो वेरी सिंपल, -1 राइट 1 upon 4 into -1 राइट 1 upon 2 into -1 राइट 3 upon 5। ओके बेटे, देखिए सबसे पहले सबको क्या करेंगे, सभी मिक्स फ्रैक्शन है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले सबको अपन पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और ध्यान रखना, जब भी मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रैक्शन में भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर बताया था ना। प्रॉपर किसको बोलते हैं, ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर। ओके, देखो 1 को मल्टीप्लाई 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 4 और उसमें 8 करेंगे 1, तो -5 upon 4 into -3 upon 2 into -8 upon 5। आगे समझ में, देखो 2 1 जा 2 + 1 3 upon 2, 5 1 जा 5 और 3 8 upon 5। अब देखिए दिस 5 से 5 1 जा 5, दिस 5 1 जा 5, ये 1 टाइम कट गया, ये 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 8, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, केवल न्यूमरेटर में देखो माइनस 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 कितने बार, -1 की पावर 3 बार है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना 3 और डिनोमिनेटर में बचा 1, तो ये बचा आपका -3 इज योर आंसर। हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, क्लास 7 third chapter rational number, and today we are going to learn how we will divide the two given rational number. So to start this topic, first we will discuss what do you understand by the reciprocal of a rational number. तो सबसे पहले मैं आपको एक रिकॉल करा देता हूँ, रेशनल नंबर मींस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेशनल नंबर। इफ वी हैव गिवन p and q be the two integer, p और q क्या है, कोई दो इंटीजर है। इंटीजर मींस a complete number, it may be positive, it may be negative or zero। तो एक कोई इंटीजर है p, दूसरा इंटीजर q है, एंड इन दोनों की कंडीशन ऐसी है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। then p upon q is known as rational number। so rational number का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास में कोई दो इंटीजर दे रखे हैं p and q और उसमें कंडीशन दे रखी है कि q 0 के बराबर नहीं है, then p upon q is known as a rational number। so for example, जैसे हमारे पास p3 है, q अगर 4 है तो 3/4 is a rational number।
ऐसे ही अगर मैं कहता हूं कि p कोई नंबर 5 है, q आपका -2 है, देन 5 upon -2 is also a rational number. And our topic is what is the reciprocal of a rational number. So let हमारे पास कोई एक rational number है x upon y, where x is आपका numerator है, y आपका denominator है. लेकिन कंडीशन क्या है रेशनल नंबर की कि जो y है या q है वो जीरो नहीं होना चाहिए. तो x अपॉन y अगर कोई रेशनल नंबर हो, इसका मुझे रेसिप्रोकल लिखना है. रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को एज ए न्यूमरेटर. सो रेसिप्रोकल ऑफ x अपॉन y विल बी y अपॉन x. और सिंपली हम किसी भी नंबर का अगर हमें रेसिप्रोकल लिखना है तो 1 अपॉन दैट नंबर. तो 1 अपॉन x अपॉन y, इट मींस क्या होगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा 1 into y upon x, that will be equals to y by x. So simply if we have to write the reciprocal of any number x upon y, then we will write numerator as denominator and denominator as numerator. But कैसे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 5 upon 2 be the any given rational number, and if we have to find reciprocal, ध्यान से देखिए इसको, जब भी हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है तो जिसका रेसिप्रोकल लिखना है उसके बाद इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करेंगे या वर्ड लिखेंगे रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मींस इसका रेसिप्रोकल लिख रहे हैं. तो 5 upon 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2 upon 5. जस्ट हमें उसका उल्टा करना, मींस न्यूमरेटर को हमने लिख दिया डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को लिख दिया न्यूमरेटर. बट बेसिक कांसेप्ट इज दैट कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटे 1 अपॉन दैट नंबर. सो 1 अपॉन 5 अपॉन 2, ये नेक्स्ट स्टेप में कैसे सोल्व करेंगे 1 अपॉन 5 अपॉन 2, तो 1 into 2 upon 5, that is 2 upon 5. So hope it is clear. Reciprocal of any rational number means just you have to write its numerator as a denominator and denominator as a numerator. So this is the reciprocal of any rational number. अब और कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन. जैसे लेट अस सपोज आपको कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है कि राइट द reciprocal of the following. अब फॉलोइंग में क्या है बेटे, जैसे आपको सबसे पहले किसी क्वेश्चन दिया a -1 upon 2, इसका रेसिप्रोकल क्या. सबसे पहले ये जो रेशनल नंबर है ये नेगेटिव रेशनल नंबर है. इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं. -1 upon 2 लिखें या 1 upon -2 लिखें और -1 upon 2 लिखे, एक ही बात है. इसका मतलब कि गिवन रेशनल नंबर जो है अगर न्यूमरेटर में माइनस है या डिनोमिनेटर माइनस है या होल माइनस है, इन दैट केस इट विल बी नोन एज नेगेटिव रेशनल नंबर. अब किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी सबसे पहले नेगेटिव ही होगा, तो नेगेटिव तो आप बाहर लिख दें और जो गिवन नंबर है उसके न्यूमरेटर को लिख दे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को लिख दे न्यूमरेटर. सो 1 upon 2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ -2 upon 1. ऐसे ही आपको कोई रेशनल नंबर दे रखा है जैसे -7 upon 9, तो इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे बेटे, रेसिप्रोकल विल बी -9 upon 7. देन सी एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 राइट 3 upon 4. कोई एक आपको नंबर दे रखा है, तो ये कौन सा नंबर है, लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था आपने, ये मिक्स फ्रैक्शन है. तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले अपन इक्वल टू देखो कब लिखते हैं, 4 1 जा 4 and 3 7 upon 4. अब रेशनल नंबर हुआ आपका 7 upon 4. अब जब इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो एग्जाम में बच्चे यार इक्वल टू लगा देते, इक्वल टू नहीं लिखना, आपको लिखना रेसिप्रोकल. देखो रेसिप्रोकल ऑफ 7 upon 4 किसके बराबर होगा बेटे 4 upon 7. ओके. अब अगर माइनस साइन है इसके पहले तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी आपका माइनस आ जाएगा. वन मोर एग्जांपल, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 3 राइट 7 upon 4. तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है. पहले मैं इसका इक्वल टू फ्रैक्शन लिखूंगा तो 4 3 जा 12,
12 and 7 कितना होगा 19/4। अब ये आपका रेशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर 19 है और डिनोमिनेटर आपका क्या है 4। इसका रेसिप्रोकल लिखने के लिए अपन यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/19। So reciprocals of any rational number means simply what you have to do, first of all write the given rational number in standard form. Then what you have to do, just change the numerator into denominator and denominator into numerator. So this was about the reciprocal of a rational number. Now next topic is how we will divide the two rational numbers. So division of two rational number, दो रेशनल नंबर का डिवीजन कैसे करेंगे। सो लेट अस सपोज वन रेशनल नंबर इज a/b और इसको डिवाइड करना अपने को c/d से। फर्स्ट रेशनल नंबर आपका a/b है, सेकंड रेशनल नंबर आपका c/d। दोनों न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर फॉर्म में दोनों को डिवाइड करना है। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे a/b होल डिवाइडेड अपॉन c/d। इसको कैसे लिखेंगे देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर को तो लिखेंगे अपन a/b एज इट इज और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन c/d से। तो होल अपॉन लिखे चाहिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। यहां पर क्या लिखा a/b डिवाइडेड बाय ये डिवीजन का सिंबल है c/d। a/b को किससे डिवाइड करना है c/d से या a/b होल अपॉन c/d। तो जब भी एक रेशनल नंबर को किसी दूसरी रेशनल नंबर से डिवाइड करना हो तो हम फर्स्ट रेशनल नंबर को हम एज इट इज लिखेंगे और डिवीजन के सिंबल को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में और नेक्स्ट रेशनल नंबर का क्या लिख देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो c/d का रेसिप्रोकल क्या होगा d/c। सो व्हेनेवर वी हैव टू डिवाइड a/b rational number by the rational number c/d, then this division symbol will be converted into multiplication and जिस रेशनल नंबर से आपको डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल करके हम प्रीवियस रेशनल नंबर के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए a/b into d/c का मतलब a को मल्टीप्लाई करूंगा d से, b को मल्टीप्लाई करूंगा c से, सो आंसर आ जाएगा आपका ad/bc। so this is the division of two rational number. So let us take one example. For example 3/4 if we have to divide by 4/9 तो हम क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले फर्स्ट रेशनल नंबर को हम एज इट इज रखेंगे और डिवाइड करना है तो डिवीजन की जगह यूज लेंगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल और जिससे डिवाइड करना उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 9/4 और प्रीवियस के साथ मल्टीप्लाई। तो एक प्रकार से दो रेशनल नंबर का डिवीजन करना मींस फर्स्ट रेशनल नंबर को आपको एज इट इज रखना है, डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है और जिससे डिवाइड करना उसका रेसिप्रोकल करके प्रीवियस के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 3 into 9 कितना होगा 27 एंड 4 into 4 हो जाएगा आपका 16। सो दिस इज द फाइनल आंसर। वन मोर एग्जांपल, लेट अस सपोज अपने को डिवाइड करना है, कोई रेशनल नंबर है 3/16 और उसको डिवाइड करना है अपने को और 4/8 से। सो अपन क्या करेंगे 3/16 हम एज इट इज रखेंगे, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लेंगे और नेक्स्ट जिससे डिवाइड करना उसका कर देंगे रेसिप्रोकल। तो 4/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा 8/4। आप देखिए यहाँ जिन दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर अगर दे हैव कॉमन फैक्टर तो हम उनको पहले कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 and 3 बचा तो 3 into 1 that is 3 और डिनोमिनेटर में 2 into 4 that is 3/8। So this is your final answer 3/8। So in this way इस एक्सरसाइज में हमने दो चीज सीखी है। पहला हमने क्या कहा, टॉपिक हमारा चल रहा है कि हाउ वी विल डिवाइड टू रेशनल नंबर। उसमें सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि किसी भी रेशनल नंबर का
रेसिप्रोकल मींस व्हाटएवर द रेशनल नंबर इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म, उसको जस्ट रिवर्स लिखना है, उल्टा लिखना, मतलब न्यूमरेटर को लिखेंगे अपन डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को लिखेंगे न्यूमरेटर में। सेकंड हमने दो रेशनल नंबर का डिवीजन सीखा। डिवीजन में क्या करना है, जिस रेशनल नंबर को जिस दूसरी रेशनल नंबर से डिवाइड करना है, पहली रेशनल नंबर को एज इट इज रखेंगे, डिवीजन सिंबल की जगह हम मल्टीप्लिकेशन यूज लेंगे और जिससे डिवाइड करना उसका रेसिप्रोकल लेकर के प्रीवियस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि कोई भी नंबर आपको लेटर्स को जैसे 4 दे रखा है, अगर इसको रेशनल नंबर फॉर्मेट में लिखना है तो हमेशा उस नंबर के अपॉन हम 1 लिख देंगे। तो 4 का रेशनल फॉर्म क्या होगा, 4/1। अब हमें अगर इसका रेसिप्रोकल लिखना तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4। जैसे कोई नंबर दे रखा -3, इसको रेशनल नंबर फॉर्म में लिखना है तो अपॉन 1 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सो -3/1। अब मुझे अगर इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो क्या करूंगा, -1/3। ऐसे ही अगर मेरे पास में कोई नंबर 7 है और अगर उसका रेसिप्रोकल लिखना मुझे, तो पहले 7 को मैं 7/1 लिखूंगा और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7। So this is about the reciprocal of any number. So basic concept, reciprocal means 1/that number. चलिए, now let us see the exercise 3F exercise। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आपको रफ में अच्छी तरह से सॉल्व करना है और फिर एक्सरसाइज करना है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो ए पार्ट है, रेसिप्रोकल किसका लिखना है आपको, 8/27। फिर बी पार्ट है आपका -11, फिर सी पार्ट है आपका -16/25, फिर डी पार्ट है आपका -3/-19। देन बी पार्ट है, सारे क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट -2 राइट 3/7। ई के बाद जो एफ पार्ट है वो -(1) राइट 5/6। देन जी पार्ट है आपका एब्सोल्यूट -4/3 प्लस ऑफ -3/4 एब्सोल्यूट। ये आपका पहला क्वेश्चन। तो पहले हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 8/27 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल 8/27 का 27/8। फिर इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे बेटे, रेसिप्रोकल देखो मैंने बताया कोई भी नंबर है तो अपॉन 1 लिख देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/11। देन रेसिप्रोकल किसका है, रेसिप्रोकल ऑफ -16/25। देखो माइनस एज इट इज रहेगा और 25/16 न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटे, रेसिप्रोकल होगा 19/3। ओके, देन सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो एब्सोल्यूट का मतलब एनी नंबर्स, एब्सोल्यूट मींस पॉजिटिव क्वांटिटी। सो इसका एब्सोल्यूट ये प्लस तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 7 2 जा 14, 14 और 3 कितना होगा 17, तो +17/7। अब इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे अपन, 7/17। देन सी ये क्या होगा, 6 1 जा 6, 6 and 5 11/6 और एब्सोल्यूट के बाहर माइनस है, इधर देखिए तो ये माइनस है, रहेगा -11/6। अब इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे, -6/11। अब देखिए इन दोनों टर्म को पहले हम ऐड करेंगे तो एब्सोल्यूट -4/3 -3/4। अंदर ही हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 12। सो क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4 बार, 4 4 जा 16, -16 -9। अब देखो -16 -9 कितना होगा, -25/12। तो ये हो जाएगा -25/12 का एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा 25/12। और अब इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 12/25। सो reciprocal of any rational number means we have to write first the given
नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर एंड देन उसके न्यूमरेटर को हम बना देंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना देंगे न्यूमरेटर। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक और दूसरा तरीका आपका ये भी लिखना है कि रेसिप्रोकल मींस आपको पता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो लैंग्वेज में अगर आपको किसी क्वेश्चन को लिखना है तो उसका में जैसे आप इसको कैसे लिखेंगे, जैसे रेसिप्रोकल ऑफ किसका 8/27 इक्वल टू 27/8, ऐसे लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। और नहीं तो जिस नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है उसके आगे एरो लगाना है, उस पर वर्ड लिखना रेसिप्रोकल मींस एग्जामिनर को आप क्या बता रहे हैं कि इसका रेसिप्रोकल क्या है 27/8। तो आपको समझ में आ गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ 8/27 इक्वल टू 27/8। मैथमेटिक्स में जब आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन डिवाइड। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ए डिवाइड क्या कर रखा है 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2। तो जब भी किसी एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करना हो तो कैसे करते बेटे, आप देखो इंप्लाइज दैट लिखेंगे 3/4 एज इट इज, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन लिखूंगा उसके आगे वाले रेशनल नंबर क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल। तो 1/2 का 2/1। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब देखिए ऊपर 3 into 1 नीचे 2 into 1, तो क्या आ जाएगा 3/2 आपका आंसर है। बी है दूसरा क्वेश्चन -5/8 डिवाइडेड बाय 3/2। ध्यान से देखो पहला रेशनल नंबर -5/8 है, उसको डिवाइड करना है तो किससे 3/, जैसे ही डिवाइड करना होता तो हम क्या करते हैं डिवीजन की जगह यूज लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, और आगे वाले नंबर का रख देते हैं रेसिप्रोकल। तो 2/3, 3/2 का क्या करेंगे 2/3। अब देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास -5/12। दैट्स योर आंसर। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट। सी इज योर, जल्दी से सोल्व करो कॉपी में। 4/5 डिवाइडेड बाय -4/25। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला रेशनल नंबर 4/5, इसको तो एज इट इज रखा, डिवीजन की जगह लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये क्योंकि अपनी थ्योरी है कि जब भी किसी रेशनल नंबर को डिवाइड करना है तो डिवीजन का सिंबल कन्वर्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में, और जिससे डिवाइड करना उसका लिखना रेसिप्रोकल। तो ये -25/4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो क्या बचा न्यूमरेटर में बचा -5 और डिनोमिनेटर में बचा 1। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी। D is your -3 right 1/8 divided by minus of -3 right 1/8 divided by minus of 10। वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 8 3 जा 24 प्लस 1 -25/8 डिवाइडेड बाय -10/1 लिख सकते हैं इसको। आप देखिए अब मुझे डिवाइड करना है तो -25/8 तो आपका एज इट इज है, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, और ये चेंज हो जाएगा 1/10। अब ये माइनस और माइनस दो नंबर अगर दोनों नेगेटिव है मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखो इसको करेंगे 5 2 जा 10, 5 5 जा 15। आप देखिए क्या बचा न्यूमरेटर में बचा 5 into 1 5, डिनोमिनेटर में 8 2 जा 16। सो योर आंसर इज 5/16। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन सेकंड का ई पार्ट। ई इज योर 80 divided by 1/-5। 80 divided by 1/-5। सबसे पहले 80 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 80/1। देन क्या लिखेंगे 80/1 एज इट इज है, डिवीजन के लिए अपन डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया और नेक्स्ट रेशनल नंबर का लिख दिया रेसिप्रोकल। ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा बेटे
80 into -5, तो minus of 400 upon 1, so minus 400 is your answer. Then F part, F is your minus 16 divided by minus 3 राइट 1 upon 5. देखिए माइनस 16 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटे, माइनस 16 अपॉन 1, क्योंकि किसी भी नंबर के अपॉन 1 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों लिखा कि इसको रेशनल नंबर बना दिया। फिर मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिवीजन में, और अगली फ्रैक्शन है आपकी जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, देखो पहले ये फ्रैक्शन क्या होगी, माइनस 16 अपॉन 5, अब माइनस 3 राइट 1 अपॉन 5 का मतलब माइनस 16 अपॉन 5, और जैसे ही मल्टीप्लाई लिखा तो इस रेशनल नंबर को आपका रेसिप्रोकल लिखना, तो ये माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगी 16। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा 1 बार, तो न्यूमरेटर में बचा 1, डिनोमिनेटर में बचा 1, न्यूमरेटर में बचा 1 into 5 5 और डिनोमिनेटर में 1 into 1, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 1 5 से, तो 5 upon 1, दैट इज आपका आंसर आ गया 5। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ईच क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन का मतलब हर एक का हमें क्वेश्चन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 राइट 8 अपॉन 49 को डिवाइड करना है हमें किससे, -13 राइट 4 अपॉन 7 से। सो हम क्या करेंगे, 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 49 प्लस 8 कितना होगा बेटे, 57 अपॉन 49। डिवीजन डिवाइड करेंगे, देखो 13 into 7, 13 की टेबल 7 बार बोलेंगे 91, और 91 में 4 ऐड करेंगे तो माइनस ऑफ 95 अपॉन 7। अब देखिए हमने यहाँ पर अभी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं किया कि हम पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब अगली स्टेप में 57 अपॉन 49 इनटू, जैसे ही मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा नेक्स्ट फ्रैक्शन का हमें रेसिप्रोकल करना होगा, तो ये -7 अपॉन 95। अब देखिए 57 और 95 जो है ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीपल में हैं। कैसे, 19 3 जा 57 और 19 5 जा 95। 19 की टेबल बोलेंगे तो 3 बार बोलेंगे तो 57, 5 बार बोलेंगे तो 95, और ये 7 बन जा 7 और ये 7 7 जा 49, क्योंकि ये 7 और जो 9 है 49 है, ये एक दूसरे के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। सो एक ही टेबल में आ रहे तो 7 बन जा 7, 7 7 जा 49। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा बेटे, 3 into -1 और डिनोमिनेटर में बचा 7 into 5। सो फाइनली -3 अपॉन 35 इज योर आंसर। देन बी पार्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बी पार्ट इज सॉल्व करना है, -5 राइट 5 अपॉन 36 डिवाइडेड बाय 4 राइट 1 अपॉन 9। देखो दोनों मिक्स फ्रैक्शन है और दोनों को डिवाइड करना, पहले अपन दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, देखो 36 को मल्टीप्लाई करना 5 से, तो 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3 5 3 जा 15 और 30 180। 180 में 5 ऐड करेंगे तो 185 डिवाइडेड बाय 36 और माइनस साइन डिवाइडेड बाय 4 राइट 1 9 4 जा 36 एंड 1 37 अपॉन 9। अब देखिए ये दोनों किस में कन्वर्ट होगी, रेशनल नंबर में। अब रेशनल नंबर का डिवीजन करना है तो -185 अपॉन 36 into 9 अपॉन 37। ये 9 की टेबल 9 बन जा 9 9 4 जा 36 और 85 की टेबल से ये कितने बार डिवाइड होगा, तो यहां अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करें 37 को 5 से, 37 को 5 से, तो 37 into 5 5 से बन जा 35 का 5 कैरी 3 3 3 जा 5 3 जा 15 और 3, तो ये 37 बन जा 37 और 37 5 जा 185। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कौन किससे
कैंसिल आउट हो रहा है, इसके लिए थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब 5 into 1 कितना हो गया बेटे, 5 into 1 5 और डिनोमिनेटर में 4 into 1 4 और ये साइन माइनस, तो आंसर आया आपका -5/4। दैट्स योर आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सी। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है अपनी, एक्सरसाइज 3 है क्लास 7। देखिए नेक्स्ट सी क्वेश्चन है जो है आपका -3 राइट 7/9 डिवाइडेड बाय -4 राइट 8/50। इसको सोल्व करने से सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 9 3 जा 27 और 7 34/9 माइनस का डिवाइडेड बाय 15 4 जा 60 और 8 -68/15। अब देखो दोनों रेशनल नंबर है तो -34/9 तो एज इट इज रहेंगे, डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। याद है ना अपने को, जब भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो अगली फ्रैक्शन का क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल। तो 68/15 का रेसिप्रोकल 15/68। अब देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, मतलब आंसर आएगा पॉजिटिव। 34 1 जा 34, 34 2 जा 68। ये 3 की टेबल में 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो न्यूमरेटर बचा 1 into 5 और डिनोमिनेटर बचा 3 into 2, that is 5/6 is your answer. Next question, question number 4. Question number 4 is by what must be multiplied to get, देखो 2/2 राइट 17/54 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आ जाए -4 राइट 31/36। देखो लैंग्वेज समझिए, बाय व्हाट मस्ट 2 राइट 17/54 बी मल्टीप्लाइड, किससे मल्टीप्लाई करें कि -4 राइट 31/60 आ जाए, तो माना कि x से। अब एक प्रकार से ये जो नंबर है ये x का मल्टीपल है। ओके, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटे, x बराबर होगा -4 राइट 31/36 डिवाइडेड बाय 2 राइट 17/54। अब देखो कोई भी नंबर अगर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई है और यहां से मुझे हटाना राइट में ले जाना, तो राइट में जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये हो गया एक प्रकार से आपका -4 राइट 31/36 डिवाइडेड बाय 2 राइट 17/54। तो इन दो नंबर का हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, वही प्रीवियस प्रोसेस, x बराबर पहले 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36 2 जा 72 और 72 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, वापस 72 को 72 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 144 में हम ऐड कर दें। सो नेक्स्ट 36 4 जा 144 प्लस 31 कितना होगा बेटे 5 7 और 175, तो -175/36 डिवाइडेड बाय 2 राइट। देखो 54 2 जा कितना होगा, 54 2 जा 108 और 108 में 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 808 करेंगे तो 125, तो 125 कितना हो गया बेटे 54। नाउ x बराबर -175/36 into 54/125। अब देखो ये किसकी टेबल में आ रहा है, ये 25 की टेबल में 25 5 जा 125, 25 7 जा 175 और ये 9 की टेबल में 9 4 जा 36 और 9 6 जा 54। So finally your answer will be 7 into 6, तो -42/20. This will be your answer. So this is very important question exam point of view से
कि किसी भी नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर -4/36 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, लेट this number should be multiplied by x, then resultant will be this number, then x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ये जो नंबर है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना था वो x का कोएफिशिएंट हो गया, और जब मैं किसी के कोएफिशिएंट को यहाँ से हटाऊंगा तो राइट साइड में जाकर के वो क्या होगा, पूरे नंबर को डिवाइड करेगा। तो हमने डिवीजन फॉर्म में पहले ऐसे लिखा, फिर डिवीजन का मतलब ये है, फिर दोनों मिक्स फ्रैक्शन थी उनको अपन ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर फ्रैक्शन के डिवीजन का मतलब डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, और नेक्स्ट नंबर को रेसिप्रोकल करके प्रीवियस के साथ अपन मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए 2/5 डिवाइडेड बाय 4/-7 होल डिवाइडेड बाय 1/2। बहुत सिंपल। अब देखो क्या करेंगे, 2/5 एज इट इज है इनटू -7/4, क्योंकि जैसे ही डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको किससे, ये वाला पूरा नंबर किससे डिवाइड करना है, इससे। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/2 का 2/1। अब देखो ये क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, ये भी 2 1 जा 2, ये कट गया, ऊपर बचा -7, नीचे बचा 5, तो आंसर हो गया -7/5। कितना प्यारा सवाल है। देन सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, क्लास खत्म हो रही है ना। पढ़ने के लिए भी खुश हो जाया करो कभी कभी। 2/5 डिवाइडेड बाई 4/-7 डिवाइडेड बाई 1/-2। समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 2/5 को हमने एज इट इज रखा, और ये डिवीजन यहां क्या कर दिया अपन ने देखिए ये हो जाएगा 4/-7 इंटू -2/1 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या लिख देंगे अगले स्टेप में, 2/5 डिवाइडेड बाई, पहले 4 2 जा -8, तो -8/-7 माइनस प्लस। अब ये आपका वापस रेशनल नंबर आ गया जिससे डिवाइड करना है इसको, तो 2/5 को एज इट इज रखा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, और 8/7 को 7/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ये आंसर आ गया आपका 7/20। दैट्स योर आंसर। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे, फिर किसी भी रेशनल नंबर को किसी दूसरे रेशनल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। So this exercise is very important. Hope you like this video. Please like it, share it and subscribe it and stay with me. Thank you.